Hello friends, welcome to the newest lecture of accountancy. So today we are going to talk about the reserves and provision. This is the part 1 of that video. So in this video, first I will explain all the topics in English and then in Hindi. So let us move on to our first topic, which is reserve. So what does actually reserve mean? A reserve is an appropriation of profit and not a charge against it. It means that it is calculated after the whole calculation of our net profit and not calculated before, or it is not subtracted from our profit, as it is created after the profits are calculated, unlike provisions which are made before the profits. The main purpose of this reserve is to retain earning in the business for future use rather than distributing all profits as dividends to the shareholders. Now, अभी हम देखेंगे कि रिजर्व्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है. तो रिजर्व एक ऐसा पार्ट है प्रॉफिट का जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट करते हैं. और उसका मेन पर्पस क्या है? तो उसका मेन पर्पस ये है कि है ना, हमने जितना भी सारा इनकम अर्न किया, जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है, वो हम लोग है ना डिविडेंड से जैसे बांटने से अच्छा है कि थोड़ा बिजनेस में रोक के रखे, इसलिए उसे कहा जाता है रिजर्व, क्योंकि हम लोग उसे रिजर्व करें, तो बिजनेस में रोक के रखे ताकि हम लोग फ्यूचर में उसे वापस यूज कर सके. Now, what are the importance of reserve? The first point is that it is an appropriation of profit. That is, it is created after the net profit is calculated, and unlike provisions which are charged against the profit, means it is calculated before. But reserves are calculated after the profit is calculated. Second point is that flexibility. General reserves can be used for any purpose. Specific reserves are embarked for a particular need. These are the two types of reserve. Then third point is it is shown in balance sheet. It appears on the liability side of reserves and surplus. Fourth point is it is optical in nature, that except a few cases where law is mandatory, like a debenture redemption reserve, reserves are created as a matter of prudence. Means if you want, you can create a reserve. If you don't want, so do not create it. Then next, fifth point is no separate investment is required in reserve. A reserve may be simply be an accounting entry without any actual investment of fund. Okay? तो अभी हम देखेंगे कि रिजर्व्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. तो सबसे पहला है कि ना, वो एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद हम उसका थोड़ा सा अमाउंट एज अ रिजर्व बाजू में रखते हैं. इसीलिए वो कहते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट होगा तो उसमें से सम परसेंटेज XYZ परसेंटेज हम लोग बाहर रिजर्व निकाल के रखेंगे. अगर प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस हो रहा है, तो हम लोग वो रिजर्व उस साल नहीं निकालेंगे. सेकंड है कि फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप रिजर्व दो प्रकार के बना सकते हो. या तो किसी भी पर्पस जो जनरल यूज के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एक रिजर्व बनता है, वो एक हो सकता है. और दूसरा स्पेसिफिक रिजर्व, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब हम लोग रिजर्व बनाते हैं तो उसे स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं. तीसरा, ये बैलेंस शीट में शो होता है. बैलेंस शीट में कहाँ शो होता है? तो जो लाइबिलिटीज है उसमें एक टॉपिक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उस हेड के नीचे हम लोग रिजर्व्स को दिखाते हैं. चौथा पॉइंट है कि ये ऑप्शनल इन नेचर है. ऑप्शनल इन नेचर यानी कि जब तक आपको लॉ से मैंडेटरी नहीं, जैसे डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व है, उसके अलावा अगर आपको और रिजर्व बनाने हैं तो वो आपकी मर्जी है. आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हो, नहीं बनाने हैं तो नहीं बना सकते. पांचवा पॉइंट ये है कि इसमें कोई सेपरेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है. ये एक सिंपल अकाउंटिंग एंट्री लिख सकते हो कि ना भाई, इसमें से हमने इतना पोर्शन जो है हमने नेट प्रॉफिट में से रिजर्व में डाला है, लेकिन आपको एक्चुअली है ना फंड्स उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ वी विल मूव on to the examples or the uses of reserve. So what does it helps in? It helps to understand the financial management and profit allocation of the firm. For example, in exams, if we look at the in the exam point of view, the questions are asked differentiate between reserves and provision, or explain general reserves with example of specific reserve with example, etc. By the way, the practical relevance of the reserve is that it ensures stability during downturns and to fund growth without always relying on external borrowing. Some point in the company's life or a business life, you would need some funds, but you are unable to get loan, or you might not always turn towards getting a loan from a bank or any institution.
that times you would need to borrow some savings. You know the concept of savings. So in the business world, if you are saving your profits, it is termed as an reserve. तो अभी हम लोग देखेंगे कि रिजर्व के कुछ यूजेस क्या है. तो पहले तो ये रिजर्व जो है हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रॉफिट एलोकेशन है, उसे अंडरस्टैंड करने में हमें बहुत मदद करता है. क्योंकि कि जैसे हम लोग सेविंग्स करते हैं वैसे ही ये बिजनेस की एक सेविंग्स है. तो क्या बोलेंगे कि आप पूरा का प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है वो आप कैसे यूज कर रहे हो, उसमें से कुछ बचा के रख रहे हो, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कुछ रीएलोकेट कर रहे हो, एक्सेट्रा. अभी अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें है ना दो तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे रिजर्व्स और प्रोविजन में आप डिफरेंशिएट करो, या फिर जनरल रिजर्व को आप एक्सप्लेन करो एग्जांपल्स के साथ, स्पेसिफिक रिजर्व को एक्सप्लेन करो एग्जांपल्स के साथ, एक्सेट्रा. लेकिन अगर हम लोग रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी है वो स्टेबल रहे. जब भी उसमें कुछ डाउनफॉल आए या फिर उसे पैसों की जरूरत है तो वो हमेशा बाहर से बोरो करने का उसे जरूरत ना पड़े और वो खुद के जो रिजर्व सेविंग्स है उनकी रिजर्व्स के रूप में उसे वो यूज कर सके. तो ऐसे ही बुरे हालात के लिए ये रिजर्व्स बनाए जाते हैं. सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ सके. तो अगर हम लोग नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज जनरल रिजर्व, अ टाइप ऑफ रिजर्व which is a general reserve in accountancy. So what does this general reserve actually mean? So general reserve means that a reserve which is created from revenue profit. It is not embarked for any specific purpose. In short, it is a flexible profit appropriated fund that provides financial strength, stability and security to a business without being tied to any specific purpose. Let's take an example. Whenever you are doing household savings, so you means remove some part is for general savings for in case of emergency savings, right? So these are known as general reserve. But there are some savings like for college, you are saving for your college, or you are saving for a new car, or you are saving for a new phone. So these savings are specific reserve, but the in case of emergency savings are known as general reserve in अकाउंटेंसी. तो अभी हम देखेंगे कि ये जनरल रिजर्व एक्चुअली क्या होता है. तो ये जो जनरल रिजर्व है ये हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट यानी कि हमारे नेट प्रॉफिट से क्रिएट होता है. उसका कोई एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता. ये इन केस ऑफ इमरजेंसी वाले रिजर्व है कि हम लोग है ना भाई इतना हमें थोड़ा साइड में हम लोग रखते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आगे चल के कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आई तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं. इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, तो आप ये किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो. Now we will look at the importance of general reserve. So why is it important? First point is it is created from revenue profits. That is, it is formed out of company's normal business profit after the net profit is calculated. Okay. Second point is it strengthens the financial position. It acts as a safety cushion for the business for improving stability and creditworthiness of the company. Third point is it is shown in balance sheet. Again, as I have said, it is shown under the head of reserves and surplus, the liability side of the balance sheet. That is credit side of the balance sheet. Fourth point is it improves dividend policy. It helps in maintaining steady dividend payout to the shareholders even in the years of low profit. For example, if you have are in the point of break even, means you haven't earned any profit this year, but you would need to give out dividend to your shareholders, right? So where would that money come from? It could be drawn out from this general reserve. तो अभी हम देखेंगे कि अभी हम हिंदी में देखेंगे कि ये जनरल रिजर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अकाउंटेंसी में. तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये रेवेन्यू प्रॉफिट से बना जाता है. यानी उसका मतलब क्या है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है, हम लोग जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं यानी कि बिजनेस कंपनी का जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये कैलकुलेट करने के बाद इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि रेवेन्यू मींस इसे रिजर्व में कितना रखेंगे और कितना हम लोग डिविडेंड पे आउट में डालेंगे एक्सेट्रा. सेकंड, ये कंपनी का जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करता है. यानी कि क्या है ना, ये बिजनेस के लिए एक सेफ्टी क्वेश्चन जैसा काम करता है. ये उसे स्टेबिलिटी भी देता है, क्रेडिट वर्दीनेस भी देता है और उसको एक गारंटी भी देता है कि अगर कुछ हालात खराब हुए तो हम लोग इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट है कि बैलेंस शीट में
क्रेडिट साइड में दिखाता है। क्रेडिट साइड यानी लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में हेड होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर इन जनरल रिजर्व को दिखाया जाता है। और फोर्थ पॉइंट है कि ये है ना डिविडेंड पॉलिसी को इम्प्रूव करता है। आप समझो कि आपकी कंपनी हर साल डिविडेंड दे रही है, किसी साल उसका प्रॉफिट नहीं हुआ या फिर उसको नहीं हुआ, लेकिन अभी आपको ये कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा ना, हर साल डिविडेंड दे रहे हो तो इस साल भी देना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आप जनरल रिजर्व पे रिलाई कर सकते हो। नाउ वी विल लुक एट द few more importance. So next is the appropriation of profit. As like I said, it is an appropriation out of profit and not a charge against it. Next, it has flexible use. It can be used for multiple purposes like meeting unforeseen losses, funding future projects, or paying dividends when profits are low. And third, it is obviously optional in nature. If you want to create, you can create. It has no legal foundation to create it. Okay, तो अभी और थोड़ी इंपॉर्टेंस देखेंगे तो फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंस है कि एक एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग उसे प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद बनाते हैं, इसलिए वो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। सेकेंड कि हम लोग इसे किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल यूज है क्योंकि ये जनरल है, तो इसे हमने किसी टास्क के लिए नहीं किया, नहीं हमें इसी के लिए यूज करना है, आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। तीसरा, ये बनाना कंपलसरी नहीं है, आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते। जब तक कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है, जब तक उसमें स्पेसिफाई नहीं होता तब तक आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल लुक एट द एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व। So for example, if a company earns let's say 50 lakh in profits a year, it may transfer 5 lakh to general reserve. This strengthens the balance sheet and ensures funds are available for future needs. अगर समझो आपकी कंपनी है ना 50 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करिए, तो आप उसमें से 5 लाख निकाल के जनरल रिजर्व में रखोगे, क्वेश्चन बना के रखोगे अपनी कंपनी के लिए, तो इससे आपकी जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रेंथ रहेगी। और है ना आप ये भी इंश्योर कर सकते हो कि आगे जाके अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम लोग इसमें से यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू लेट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड आर difference between reserves and provision or explain general reserve with example। and the exam point of view से general reserve कैसे पूछा जा सकता है, तो obviously difference between reserves and revenue या फिर उस explain general reserve with example। और अगर हम लोग practical life में देखेंगे तो इसका यूज कैसे होता है, तो ये इंश्योर करता है कि ना जब भी कंपनी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कंपनी है ना लोन लेने की जगह इसके ऊपर रिलाई कर सकती है। तभी हम लोग बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट की ओर। उससे पहले अगर आपने लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पेसिफिक रिजर्व इन अकाउंटेंसी। सो व्हाट डज दिस स्पेसिफिक रिजर्व एक्चुअली मीन? इट इज द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर पर्टिकुलर और pre-decided purpose. Unlike general reserve, it cannot be used freely for any purpose other than the one it was created for. Specific reserve जैसा नाम बोल रहा है कि एक specific reserve है, यानी कि है ना इसके ऊपर आपने पहले से डिसाइड किया कि नहीं मुझे ये फोन लेना है तो उसके लिए मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, तो ये फोन के लिए सेविंग्स है। वैसे ही मुझे है ना बैड डेट्स है, अगर मैं पास बैड डेट्स आते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए मुझे रिजर्व है, तो ये स्पेसिफिक रिजर्व है। हाँ, ये जनरल रिजर्व के लिए नहीं कि आप किसी भी यूज के लिए यूज कर सकते हो, आपने जिस चीज के लिए ये रिजर्व बनाया है आप उसी के लिए यूज कर सकते हो, उसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते। नाउ वी विल लुक एट सम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्पेसिफिक रिजर्व। सो स्पेसिफिक रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। द मेन फीचर व्हिच इज ऑब्वियस इन द नेम is that it is embarked for a particular obligation or contingency. Second is that restriction on use. As we know, it is made for a specific purpose. That means it cannot be used for any other purpose. It can only be diverted if the articles of association, the document articles of association and the boards of directors of the company approve it. Only then it can be used for other purposes. Third is source of creation. It is formed out of profit of the business, generally revenue profit. It is shown as appropriation of profit in
P&L appropriation account. Okay, so it is made before the net profits are calculated. तो अभी हम देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंस क्या है ये स्पेसिफिक रिजर्व का। तो ये जो इसका मेन फीचर है कि ये भाई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम लोग बनाते हैं, उसके अलावा कहीं यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब आपका आर्टिकल AOA मेंशन करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये अप्रूव करते हैं, तभी आप इसे किसी और यूज के लिए रख सकते हो। और इसका जो सोर्स है क्रिएशन का वो कहाँ से होता है, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग ये रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो नाउ वी विल लुक एट सम मोर इम्पोर्टेंस। Next, it is shown in the balance sheet. It appears under the head of reserves and surplus in the liability side of balance sheet. Okay, then it provides financial security. It ensures that funds are available when those specific needs arise. It is mandatory in some cases like debenture redemption reserve under the Companies Act, but otherwise it is optional. तो और क्या इम्पोर्टेंस है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि है ना, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आपको देखने को मिलेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस साइड के नीचे। ये आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जब भी वो सिचुएशन आएगी आपको वो स्पेसिफिक जो सिचुएशन आपने मेंशन की है वो आएगी, तब आपके पास फंड्स होंगे। और तीसरा, ये थोड़े केसेस में लीगली मैंडेटरी होता है, कंपल्सरी होता है बनाना, जैसे कि डिवेंचर रिडीम्पशन रिजर्व अंडर द कंपनीज एक्ट। अदरवाइज आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। So with this, let's move on to the examples of specific reserves. So some of the examples of specific reserves are debenture redemption reserve, that is for the repayment of debentures. Then dividend equalization reserve to maintain steady dividend payouts, and investment fluctuation reserve to cover the losses due to the fall in investment values, etc. तो और क्या एग्जांपल्स है स्पेसिफिक रिजर्व्स के, आपने ये सुने होंगे। डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व, जब भी आप डिबेंचर्स इश्यू करते हो तो उसका जब रीपेमेंट होता है, जब आप उसे रिडीम करोगे तो उसके रीपेमेंट के लिए आप थोड़े रिजर्व बना के रखते हो, उसका नाम होता है डिबेंचर रिडीम्पशन रिजर्व। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, तो जब भी है ना आपको पता है कि है ना कंपनी को हर साल डिविडेंड देने पड़ते हैं या फिर रेगुलर इंटरवल पे डिविडेंड देने पड़ते हैं, तो कभी कभार उसके पास प्रॉफिट नहीं हो सकते, तो उसके लिए रिजर्व बनाया जाता है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये रिजर्व बनाया जाता है ताकि आप कंपनी ने जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है वो फ्लक्चुएशन होने की वजह से उसके जो लॉसेस है वो कवर हो पाए। विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।